Hello students, I am Ritika Sharma, teacher of Ampe International School, Nayagaon, Kota. So today we will read chapter 2, which name is The Classroom in the Train. It's your chapter 4 in English textbook. This extract is all about a girl which name is Tetsuko Kuroyanagi, who has a nickname also, Toto-chan. So students, this chapter is all about a girl whose name was Tetsuko Kuroyanagi, who has a nickname also Toto-chan, and in this chapter we will read about Toto-chan. This story was set in World War II. She was a Japanese girl who was so curious and हमेशा वो दूसरों से questions पूछती रहती थी. That's why his teacher got frustrated with her. So इसलिए उसकी जो मदर थी उन्होंने दूसरे स्कूल में उसको एडमिट करवा दिया था, उसका एडमिशन करवा दिया था. And in this chapter we will find out that how she manages the school, that she would be happy or she would be sad. Let's read the story. So here's the story begins. No one had arrived yet when Toto-chan got to the door of the railroad car. The headmaster had told her would be her classroom. It was an old-fashioned car, one that still had a door handle on the outside. You took hold of the handle with both hands and slid the door to the right. Toto-chan's heart was beating fast with excitement as she peeped inside. See, हमारे यूजुअली क्लासरूम कैसे होते हैं, एक बिल्डिंग के जैसे होते हैं, राइट. सो जब टोटो-चान को जिस स्कूल में एडमिशन किया गया था उसके जो कैरेजेस, उसके जो क्लासरूम थे, दैट वाज लाइक अ रेलवे कैरेजेस. ओके, सो व्हेन शी वेंट देयर, सो जब वो वहाँ पे पहुंची तो उसके जो डोर थे वो एक रेल रोड कैरेजेस जैसे होते हैं ना, रेल रोड के जैसे कैरेजेस का जो गेट होता है, फ्रंट डोर होता है, उसकी तरह थे. ओके, एंड हर हेडमास्टर हैड टोल्ड हर दैट वुड बी हर क्लासरूम. और उन्होंने उनके जो हेडमास्टर थे, उनके जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि यही तुम्हारा क्लासरूम होगा. एंड शी वॉज शॉक्ड. It was an old-fashioned car, one that still had a door handle. See, आप लोग जब ट्रेन में जाते हो उसका जो कैरेज होता है, कैरेज का जो फ्रंट डोर होता है, उस पर जो हैंडल होता है, सो उनके हेडमास्टर ने कहा, प्रिंसिपल ने कहा कि आप उसको हैंडल को पकड़ो अपने दोनों हाथों से, एंड यू वेंट देयर, यू गो इनसाइड. ओके, सो टोटो-चान्स हार्ट वॉज बीटिंग वेरी फास्ट. उसका जो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी उसकी जब वो अंदर गई. Oh, starting here would be like going on a perpetual journey. उन्होंने टोटो-चान का ये मानना था, वो ऐसा सोच रही थी कि यहाँ पे पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला काम होगा. The windows still had baggage racks above them. The only difference was that there was a blackboard at the front of the car. At the lengthwise seats had been replaced by the school desk and chairs, all facing forward. The hand straps had gone too, but everything else had been left just as it was. Toto-chan went in and sat down at someone else's desk. See, जब वो अंदर गई उसने देखा कि वहाँ पे मतलब पूरा का पूरा वो रेलवे कैरेज ही था, वैसा का वैसा ही था. बट व्हेन शी गोज इनसाइड, वो देखती है कि यहाँ पे सब कुछ वैसा ही है. बट क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है कि वहाँ पे कैरेजेस की जगह, वो जो रेलवे सीट्स होती हैं उनकी जगह वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेस्क लगी हुई है और एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है. कहाँ पे? उसके फ्रंट में, डेस्क के सामने, डेस्क जितनी भी डेस्क है उनके सामने ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है. सो यही एक डिफरेंस था. But they were so much more comfortable. She could sit on them all day. Toto-chan was so happy and liked the school so much. She made a firm decision to come to school every day and never take any holidays. See, पहली बात तो वो किसी और की सीट पे बैठ गई थी, ठीक है. एंड दूसरी थिंग ये कि उसको ये जो कैरेजेस हैं और ये जो सीट्स हैं वो उसको इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही थी. She liked it so much. So she said a strong decision, a firm decision to come to school every day and never take any holidays. Toto-chan looked out of the windows. She knew the train was stationary. उसको ये पता था कि वहाँ पे कोई इधर उधर तो जाना है नहीं, कोई मूव तो होना है नहीं.
but it was the flowers and trees in the school grounds were swaying slightly in the breeze. It seemed to be moving. लेकिन उसको ये लग रहा था, उसको ये पता थी कि अगर मेरा क्लास इधर उधर मूव नहीं हो सकता, बट जब वो विंडो से आउट ऑफ द विंडो देख रही थी तो उसको अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था. क्यों? क्योंकि जो ब्रीज से ट्रीज एंड प्लांट्स इधर उधर थोड़े थोड़े हल्के हल्के मूव हो रहे थे. I am so happy, she finally said out loud. Then she pressed her face against the window and made up a song just as she always did whenever she was happy. I am so happy and now she will sing a song. और वो song वो तभी sing करती है जब उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, जब when she feel very very happy. So what was the song? I am so happy am I. Why am I happy? Because जस्ट एट दैट मोमेंट समवन गॉट ऑन. उसी टाइम जब वो ऐसा सॉन्ग सिंग कर रही होती है, उसी टाइम कोई आ जाता है. इट वॉज अ गर्ल. स्कूल बैग एंड पुट दैम ऑन हर डेस्क. Then she stood on tiptoe and put the bag on the rack. Suddenly a girl came in the classroom और वो अपना पेंसिल बॉक्स अपने बैग में से निकालती है. and she put them on her desk. Then she stood up on tiptoe, मतलब वो उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, टोटो चान के सामने आके खड़ी हो जाती है. and put the bag on the rack. She put her shoe bag up there too. टोटो चान स्टॉप सिंगिंग क्विकली. वो उसको देख के एकदम चुप हो जाती है. एंड डिड द सेम, और वो ऐसा ही करती है, मतलब अपना सारा सामान उठाती है और खड़ी हो जाती है. आफ्टर दैट अ बॉय गॉट ऑन, और उसके बाद एक लड़का आ जाता है. ही स्टूड एट द डोर एंड थ्रू हिज बैग ऑन द बैग. वो वहाँ डोर पे ही खड़ा रहता है और वो अपना बैग उठा के इस तरीके से उस बैगेज पे फेंकता है जैसे कि मानो ही वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल. इट बाउंस ऑफ एंड फेल ऑन द फ्लोर. बैड शॉट सेड द बॉय. वो अपना मतलब बैग उठा के फेंक देता है, बट वो जो बैग है वो नीचे गिर जाता है. एंड ही सेड बैड शॉट एंड टेकिंग एम अगेन फ्रॉम द सेम प्लेस. और वापस से वो वहीं से ही अपने बैग को दोबारा फेंकता है. दिस टाइम इट स्टेड ऑन नाइस शॉट. ही shouted followed by no bad shot as he scrambled onto the desk and opened his bag to get out his notebook. और वो वहाँ पे चला जाता है, मतलब कि वो बैग फेंकने के बाद वहाँ पे अपनी डेस्क पे चला जाता है एंड वो अपनी नोटबुक और पेंसिल बॉक्स निकालता है. His failure to do this first evidently made it count as a miss. Eventually there were 9 pupils in the car. See, उस क्लासरूम में only 9 pupils थे, means 9 students थे. ठीक है. The comprised the first grade at Tomo Gekun. जो फर्स्ट रैंकर था, जो टॉपर था, he was Tomo Gekun. They would all be traveling together on the same train. मतलब they would all together in the same train means मतलब वो सारे के सारे एक ही क्लास में रहते थे, एक ही क्लास में स्टडी किया करते थे. Going to school in a railroad car seemed unusual enough. बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो चुका था उसके लिए, लाइक ऐसे रेलवे कैरेजेस में स्कूल में पढ़ना, इस टाइप के स्कूल्स में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल हो गया था. बट सिटिंग अरेंजमेंट टर्न्ड आउट टू बी अनयूजुअल टू. एट द अदर स्कूल ईच प्यूपिल वॉज असाइंड अ स्पेसिफिक डेस्क. और हर एक प्यूपिल को, हर एक स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक डेस्क मिल गई थी. हाँ, कि मतलब तुमको यहाँ बैठना है एंड तुमको यहाँ बैठना है, इस तरीके से स्पेसिफिक डेस्क. But here they were allowed to sit anywhere they liked at any time. लेकिन ऐसा होता था, पहले के मतलब जो नॉर्मल स्कूल्स होते थे वहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐसा माना जाता था कि मतलब इसको बोला जाता था कि तुम एक स्पेसिफिक सीट पर ही बैठोगे. बट इसमें ऐसा होता था कि उनको मतलब कहीं भी उनको अपना बैठने की अलाउड होते था, परमिशन होता था. आफ्टर अ लॉट ऑफ थॉट एंड अ गुड लुक अराउंड, टोटो चान डिसाइडेड टू सिट नेक्स्ट टू द गर्ल हु हैड कम आफ्टर हर दैट मॉर्निंग. और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उसने ये डिसीजन लिया कि वो उसी गर्ल के साथ बैठेगी जो उसके बाद जब व्हेन शी कम स्टार्टिंग इन द स्कूल, जब वो स्टार्टिंग में आई थी स्कूल में, तब उसके बाद जो लड़की आई थी उसने बोला कि वो उसी के साथ ही बैठेगी. सो हियर्स द एंड ऑफ योर चैप्टर.